morning, students. Last weeks we were in Netherlands, and today we will move from Netherlands to France, which is also in Europe. प्रिय बच्चों, पिछले कुछ हफ्ते हम लोग नीदरलैंड में थे। आज हम जो है दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे और फ्रांस नामक देश में आएंगे और यहाँ की एक मशहूर चित्रकला के बारे में हम आज सीखेंगे। Dear students, today we will be studying about a very famous artist named Henri Matisse. He was born on 31st of December 1869. प्यारे बच्चों, आज हम एक मशहूर चित्रकार के विषय में पढ़ेंगे। उनका नाम है हेनरी मटसे। उनका जन्म 31 दिसंबर 1859 में हुआ था। Henry Matisse did legal studies and he worked in a law office as clerk. प्यारे बच्चों, हेनरी मैटिसे कानून के विषय में अध्ययन किए और वो एक ऑफिस में वो काम कर रहे थे। And children, when he was around 21, he had a severe attack of appendix, and because of that he was bedridden and he could not do anything. And at that time his mother gifted him a box of colors. प्यारे बच्चों, जब हेनरी मैटिसे 21 साल के थे तो अचानक उनको एक बीमारी हुई। उनको अपेंडिक्स की बीमारी हुई और वो अपने बिस्तर में कई दिनों तक पड़े रहे। उस समय उनकी माता ने उनको एक कलर का बॉक्स दिया और तब से उनके अंदर चित्र बनाने का इच्छा जागृत हुआ। Dear students, he was very much influenced by Van Gogh. We had studied last time about Van Gogh and he was very much influenced by that. प्यारे बच्चों, मटिसे जो हैं वैन गॉग के चित्रकला से काफ़ी प्रभावित थे। And some of his famous pictures are this. One of his picture is about the cat catching the fish and another is the fish in a glass. We see the colors are so bright. प्यारे बच्चों, ये उनके दो महान चित्र हैं। एक में आप देखते हैं बिल्ली जो है वो मछली को पकड़ रही है और दूसरे में मछलियां जो हैं तैर रही हैं। आप इनके रंगों को देखेंगे कितना गाढ़ा और कितना सुंदर दिख रहा है। Dear children, you see some of his other paintings. They are so bright. प्यारे बच्चों, अगर उनके और भी कुछ चित्रकला को देखेंगे तो हम देखते हैं कि उन्होंने रंगों का कैसे इस्तेमाल किया है। And his pictures were famous all over the world and it was known as Fauvist movement. और उनके जो चित्रकला है वो पूरे विश्व में मशहूर हुआ और वो फॉविस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। Dear children, just observe the colors. प्यारे बच्चों, जरा हम इस रंगों को ध्यान से देखें। Even green color is there in the face. Green, yellow and different colors. You see this? And also here you see the different colors that he is using in his pictures. The different shades. प्यारे बच्चों, अगर हम इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो हम पाते हैं कि वो कितने रंगों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। चेहरे पे ही देखिए कितने रंग हैं, पीला है, हरा है, काला है, तो कई रंगों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। इन द सेम वे इन द अदर पिक्चर्स ऑल्सो, दूसरे पिक्चर्स में भी उन्होंने कई रंगों का इस्तेमाल किया है। Dear students, when he was 60 years old, he became very sick. And he became so sick that he was not able to paint. And he was sitting in the wheelchair and then he devised a new way of expressing himself. And that was through cuttings. प्रिय बच्चों, जब वो 60 साल के थे तो उनको एक बड़ी बीमारी हुई और इस कारण उनको व्हीलचेयर में रहना पड़ा।
लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने। वो चित्र तो बना नहीं पा रहे थे, लेकिन वो अपने अंदर की भावनाओं को कटिंग्स के द्वारा, पेपरों को, रंगीन पेपरों को काट कर, उसको लगाकर, जोड़कर वो अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे। Dear students, he was not able to do the paintings because of his sickness, but he didn't stop there. He started using cuttings to express his feelings, and we see some of his cuttings that he made, which is very beautiful. See, dear students, here you can see him sitting on the wheelchair, and there is his assistant. So he was not able to get up, so he used to cut the papers and tell the assistant to put it on the wall, and the assistant used to help him. प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने व्हील चेयर पर बैठे हैं। क्योंकि वो उठ नहीं पाते थे, तो वो पेपरों को काट करके अपने असिस्टेंट को देते थे, जो जाकर उसको दीवार पे लगाते थे जैसे वो चाहते थे। इस तरीके से वो अपना चित्र तैयार करते थे। Dear students, these are some of his very famous cuttings. This is an underwater scene. This is very famous cutting. And you see the colors here? प्यारे बच्चों, यहाँ पर उनके मशहूर चित्र हैं जो उन्होंने पेपर को, रंगीन पेपरों को काट करके बनाया है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये पेंटिंग नहीं किया है, लेकिन उन्होंने रंगीन पेपरों को काट करके, उसको पेस्ट करके इस तरीके के चित्रों को उन्होंने तैयार किया है। और उसके लिए उनके साथ एक सहायक हमेशा रहते थे। For this purpose, he always had an assistant who used to help him to paste the paper cuttings at the right place. Dear students, one thing that you will observe here, that in spite of all his problems, all the challenges he had, you see how much positive he was, and see his pictures, how colorful and how positive it was. प्यारे बच्चों, अगर हम इनके चित्रों को देखेंगे, जब ये बीमार थे उस समय जो चित्र इन्होंने बनाए हैं वो कितने सुंदर हैं। और एक चीज ये हमें सिखाता है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। There is a famous quote from him. He said like this, "There are always flowers for those who want to see them." इनका एक बहुत मशहूर कोट है जो ये कहता है कि जो चाहते हैं फूल देखना, वो जरूर फूल देख लेंगे। Dear students, he was sick. He could have only looked at the problems he had, but we see that he always looked life with a positive eyes. प्यारे बच्चों, उनके जीवन में काफ़ी समस्याएं थीं, काफ़ी बीमार थे, इसके बावजूद भी वो जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से वो देखे। उनके चित्र इस बात को हमें दर्शाते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में चाहे जितना भी संघर्ष क्यों ना हो, हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए।